Hello and welcome to India Top Doctor. Today we will talk about breast cancer. Breast cancer is the most common cancer among women, and the incidence of the cancer is on the rise. However, if we are able to talk about it more, maybe we can do something about it. So, for the same purpose, today we will be having a conversation with a very special guest, Dr. Meenu Walia. Dr. Walia is the first DNB medical oncologist in India. She has 26 years of experience in the field of medicine, with over 30 years of experience in the field of medical oncology and hematology. She has been felicitated with the Most Influential Woman of 2021 award by Srimati Meenakshi Lekhi, Minister of State for External Affairs and National Spokesperson in BJP. She is the author of a hugely popular book among cancer patients, that is Tips for Happiness in the Shadow of Cancer. And not just this, she is also a TEDx speaker. The more I say about her will be less. So without wasting any more time, let's welcome her. Good evening, ma'am. Hi, good evening. Okay. Yeah, that's. Yeah, welcome to India Top Doctor. Yeah, hi. As you know, today we will be talking about breast cancer. But firstly, I want to ask you about you. Can you tell us why did you choose oncology? So have we started or we will start after this? We have started. Whatever. Yes, it is. We have started. Yeah. So you don't want an introduction? I have given your introduction. What is the question? You asked me why I chose to become an oncologist. Absolutely right. I think कि शायद कुछ और मैं बनती ना तो मैं शायद अपने प्रोफेशन को इतने पैशन के साथ नहीं कर पाती. Even before I became a cancer specialist, a cancer doctor बनने से पहले, what I was a caregiver of a cancer patient. When I got married, my husband was the only son, and my mother-in-law, she had a stage 4 advanced cancer. And on the day of her marriage, she could not attend the marriage of her only son. She was admitted in the hospital in the terminal phase. And as God would have it, my mother also had cancer after a few months. So I have seen cancer at a very close quarters. मतलब मैंने एक केयर गिवर के एस्पेक्ट से मैंने एक उस एस्पेक्ट से देखा है कि जब फैमिली में कोई कैंसर का पेशेंट होता है, और ये उस समय की बात है जब दिल्ली में कैंसर की फैसिलिटीज इतनी डेवलप नहीं थी, जब टाटा बॉम्बे वाज द ओनली मक्का मदीना ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, and everybody used to rush to Mumbai at that point of time. And I was a MD medicine, I was a physician myself at that point of time, and I realized that even as a physician, there were so many unique problems of cancer patients which I could not address. And that was the main thing I wanted, that this is a field where we need to do so much. There is so much of vacuum, so much of hand holding is required. So many things can be done. And that was the main reason that I pursued later on oncology as a career. And I think that is the reason that I'm so passionate about treating cancer patients. So healing cancer patient, bringing anything better for their life is my sole and mainly aim or motto of my life. It is really an inspiring story. It's because you are so connected with that thing, you would get it. My next question is that we all know the common terminology of breast cancer, but we have seen that breast cancer is not just one disease, it is a wider aspect than that. So can you tell us about that? So for that matter, no cancer is one disease. When we talk about cancer, there are more than 200 different types of cancers. So cancers एक बीमारी नहीं है, कैंसर बहुत सारे टाइप का होता है, एंड उनका एक बेसिक करेक्टरिस्टिक कॉमन होता है, और वो बेसिक करेक्टरिस्टिक होता है कि वो जो सेल्स हैं उसके
वो अनकंट्रोल्ड उनकी ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होती है, वो बॉडी के नॉर्मल कंट्रोल्स पे नहीं होते, वो रेप्लिकेट करते हैं और बॉडी में स्प्रेड करने की टेंडेंसी रखते हैं. सो दिस इज व्हाट कैंसर इज ऑल अबाउट. एंड देन व्हेन वी कम टू बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, वहां पे किसी भी पार्ट में, किसी भी सेल में ये चेंजेस होने की टेंडेंसी रहती है. इसी वजह से बॉडी में जितने पार्ट्स है, यू कैन हैव कैंसर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. यू कैन हैव लंग कैंसर, यू कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर, यू कैन हैव ब्रेन कैंसर, liver cancer. तो different मतलब any part of any cell of any part of the body, any tissue of the body can get converted into, can develop mutations and can become cancerous in character and can turn into cancer. Even within the same part, for example, breast cancer. When we talk of breast cancer, so there was a time when all cancers were treated the same, and then we realized that all cancers are not the same. Cancer of each and every part is different. And then we also now realize that all cancers of the same part are also not the same. So all breast cancers are also not the same, क्योंकि breast में भी बहुत सारे different tissues होते हैं. For example, breast में duct system होता है, breast के normal tissue में lobules होते हैं. अगर lobules से cancer की शुरुआत होती है तो उसे हम lobular carcinoma breast का कहते हैं. अगर duct से शुरुआत होती है तो उसे हम ductal carcinoma कहते हैं. इसी तरह से जो ब्रेस्ट में स्ट्रोमल टिश्यू है, उसके ट्यूमर को फिलॉइड्स ट्यूमर कहा जाता है. जो ब्रेस्ट के अंदर ब्लड वेसल्स का कैंसर है, उसे हम एंजियोसार्कोमा कहते हैं. सिमिलरली ब्रेस्ट में कई बार लिम्फोमास भी हो सकते हैं, सार्कोमास भी हो सकते हैं. एंड इवन जो कॉमनेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के हम कार्सिनोमास कहते हैं, विद इन द कार्सिनोमास ऑल्सो आज की डेट पे हम ऑन्कोलॉजी में ये रियलाइज करते हैं, साइंस इज सो मच एडवांस दैट ऑल कार्सिनोमास आर ऑल्सो नॉट द सेम. जैसे उसके अंदर भी डिफरेंट मॉलिक्यूलर सिग्नेचर होता है इवन विद इन द ब्रेस्ट कार्सिनोमास. फॉर एग्जांपल, उसमें भी आप सेल्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. कुछ कैंसर्स होते हैं जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमास होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रिपल पॉजिटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो हर्टिन्यू एनरिच्ड होते हैं. तो ये डिफरेंट टारगेट्स हैं जो कैंसर सेल्स पे होते हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर सिग्नेचर होते हैं जो कैंसर पे होते हैं. तो इसी वजह से कहा जाता है कि हर पेशेंट में जो भी कैंसर है, दैट इज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट एज सिंपल एज सेइंग दैट इट इज अ ब्रेस्ट कैंसर. तो ब्रेस्ट कैंसर की भी कौन सी सब टाइप है, उसका क्या मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रीटमेंट सबकी डिफरेंट है. वी हैव टू अप्रोच ईच कैंसर एंड ईच डिफरेंट स्टेज ऑफ कैंसर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फैशन. राइट, बहुत ही इंसाइट दिया है आपने इस टॉपिक पे. बट अगर हम बिगिनिंग की बात करें, कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर और लोग इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. अगर हम प्रिवेंशन, वी नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हम बिगिनिंग में चले तो कॉज के क्या है इसकी. So definitely prevention is always much better than cure, and especially when it comes to illnesses, into chronic illnesses like cancer, prevention is always better than cure. But prevention की अगर बात होती है कि इस कैंसर का कॉज क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली जैसे सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, हमें मालूम है कि जो वो ज्यादातर कैंसर एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा एक स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट जिसको हम डायरेक्टली लिंक करें कैंसर को, दैट कॉज इज नॉट नोन. बट देयर आर लॉट मेनी रिस्क फैक्टर्स दैट वी नो. रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनमें अगर ये वाले फैक्टर्स ज्यादा हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के यही रिस्क फैक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली हम उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को कम कर सकते हैं. When we talk about risk factors, तो risk factors भी दो तरह के risk factors होते हैं. एक होते हैं modifiable risk factors और एक होते हैं non-modifiable risk factors. For example, what are the non-modifiable risk factors? Non-modifiable risk factors are, जैसे अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है. अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली कंपेयर टू अ मेल काउंटर पार्ट ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा है. और आपकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जल्दी शुरू हो गई है, मतलब मिनार्की जल्दी हो गई है या मेनोपॉज लेट होता है,
या आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है, तो इन सभी केसेस में आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। बट दीज व्हाट वी से आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी साइकिल्स को अर्ली मेनार्की या लेट मेनोपॉज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा जो फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सो व्हाट आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आर, अगर आपकी शादी लेट होती है, आपके या फिर चाइल्ड जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ लेट होता है, तो उन लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं बच्चे को, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपके डाइट में बैलेंस डाइट आप नहीं खाते, बहुत सारी प्रिजर्व प्रोसेस वगैरह चीजें खाती हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ओबीस हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप unnecessarily for simple things long prolonged hormone replacement therapy लेते हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा। तो these are all what we say modifiable risk factors. These are all those factors जिनमें हम कहते हैं कि हम इनको सॉरी कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड दीज आर द नोन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनको फील कैसे होगा, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो घर पे ही चेक कर सकते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या नहीं, या ऑलवेज डॉक्टर को कंसल्ट करना नेसेसरी है? देखो, ब्रेस्ट कैंसर को आप घर पे फील कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको ब्रेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर ऑफ हाउ डज द ब्रेस्ट कैंसर फील लाइक। उसके लिए क्या कहा जाता है, हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि वी हैव टू बी ब्रेस्ट अवेयर। सो व्हाट डज ब्रेस्ट अवेयर मीन? ब्रेस्ट अवेयर मीन्स कि आपको अपनी ब्रेस्ट का फील खुद मालूम होना चाहिए। एक सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, which every girl after the age of 22, after the age of 20 should be doing every month, once a month, so that they should examine their breast themselves. They should be doing breast self examination. अगर वो अपनी ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करेंगे, तो कल को अगर ब्रेस्ट में कोई भी नई गांठ होती है, कोई भी चेंज होता है, ब्रेस्ट का साइज चेंज हो रहा है, ब्रेस्ट की निप्पल अंदर की तरफ जा रही है, ब्रेस्ट की स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो ये सारे चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं, या ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस हो रहा है, ब्रेस्ट के निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा हम स्क्रीनिंग के लिए कहते हैं कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी डन after the age of 30, and 40 onwards one should always try to get a mammography. What is mammography? A simple x-ray of the breast, so that if at all breast cancer happens, it is detected early. So after one has been caused with it, कोई ऐसे कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक इंसान के लिए, और कैसे वो आफ्टर ट्रीटमेंट अपने आप को मेंटेन करके रखे, उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? The treatment options, as I described, the treatment options for breast cancer are many. Treatment options can be divided into pause. Can I take a break? Sure, ma'am. So you were saying about the different types of treatments. So जो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम ट्रीटमेंट को दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होती है लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट क्या होती है कि जहां पे आपको कैंसर की गांठ दिखाई दे रही है, आप उसको एड्रेस करते हो।
तो लोकल ट्रीटमेंट की जो मेन दो है, वन इज सर्जरी, मतलब मतलब उसको गांठ को निकाल देना, या सेकेंड इज रेडिएशन थेरेपी, मतलब थ्रू हाई एनर्जी एक्सरेज, हाई एनर्जी रेज आप उसको रेडिएशन देते हो। उसके अलावा जो कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसे हम कहते हैं सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपीज क्या होती हैं? सिस्टमिक थेरेपीज ऐसी दवाइयां होती हैं जो आईवी लाइन के थ्रू, जो ग्लूकोज के थ्रू या फिर खाने के थ्रू आप मतलब दवाइयां देते हो जो कैंसर को सेल्स को आगे खत्म करने में हमारी सहायता करती हैं। सिस्टमिक थेरेपीज डिफरेंट टाइप की होती है, इसमें कीमोथेरेपी हो सकती है, टारगेटेड थेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, हार्मोनल थेरेपी हो सकती है। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज होती हैं जो कैंसर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, तो एक क्वेश्चन आप वो बताए थे पोस्ट ट्रीटमेंट के कोई टिप्स अगर आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को। पोस्ट ट्रीटमेंट के टिप्स मैनेज कैसे आफ्टर ट्रीटमेंट मैनेज कैसे कर सकता है कोई? देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कि बीमारी का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना। सो बीमारी का पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। ओके, एंड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है माइंड में कि मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है क्या? So I was asking, there is a question in the minds of many people that can men get breast cancer? Yeah, men can also get breast cancer. Rather, we say 1% of all the breast cancers they happen in men. So we have data from US that says 1 in every 833 men have a risk of developing breast cancer during their lifetime. So breast cancer can happen in men also. Most people do not know this. एंड जब ब्रेस्ट कैंसर मेन में होता है तो वो जनरली पहले थोड़ा ज्यादा ही एडवांस स्टेज में ज्यादातर केसेस में डिटेक्ट होता है, क्योंकि एक तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती कि मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और दूसरा क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू जो मेन में होता है वो काफी कम होता है, तो इस वजह से वो कैंसर जल्दी नीचे मसल में जल्दी जाने के चांसेस होते हैं। एंड ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, क्या वो बर्थ के लिए, अब बर्थ को किसी भी वे में अफेक्ट करता है? ब्रेस्ट कैंसर की जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं यानी कीमोथेरेपी वगैरह अगर हम करते हैं तो यस, जो फर्टिलिटी है, जो एक नॉर्मल लेडी की फर्टिलिटी है वो अफेक्ट होती है, या बच्चे होने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। इसी वजह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आज की डेट में हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, स्पेशली बिकॉज बहुत सारे यंग पेशेंट्स में भी आज की डेट में हम ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। तो यंगर एज ग्रुप में जिनकी अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है, जिनको आगे बच्चे होने की चाह है, तो उन लोगों को हम नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के तरीके बताते हैं, जिसमें लेडीज के एग को प्रिजर्व करा जा सकता है, या फिर इवन अगर शी इज ऑलरेडी मैरिड तो लेडी का एग एंड हस्बैंड को स्पर्म को इवन एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन मतलब करके हम उसको एम्ब्रियो की बैंकिंग वगैरह में रख सकते हैं, ताकि बाद में जब जरूरत हो और अगर लेडीज की अपनी क्षमता कम हो गई है तो वी कैन यूज द सेम एम्ब्रियोस फॉर चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा जिनके पास जो हम ये नहीं करना चाहते, जो ये उन केसेस में कुछ ऐसे इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, दवाइयां दी जा सकती हैं कि उनकी फर्टिलिटी ज्यादा अफेक्ट ना हो। सो देयर लॉट मेनी वेज इन वेज व्हिच वी कैन ट्राई कि फर्टिलिटी अफेक्ट ना हो, और इवन ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अब आगे अपना दे कैन स्टिल हैव चिल्ड्रन एंड दे कैन हैव अ नॉर्मल फैमिली। All right.
I have this one last question, and it is certainly a very important one. As we know, there is a lack of knowledge about breast cancer. So, would you like to say anything to our audience regarding that? Yes, very, very important. All I want to say, especially to our Indian ladies, Indian women, is that we need to take care of ourselves. Why? Only when we take care of ourselves, we can actually take care of our near and dear ones. So if you are there, only then you will be, and you are there in a healthy fashion, you are a healthy you who is available, only then you can take care of your children, your husband, your family, your parents, your in-laws, everybody. So it is very, very important that we don't neglect our own health. We are body aware, we are health aware, we take adequate preventive measures, we have a healthy lifestyle and prevent cancer as much as possible. Thank you so much, ma'am, for being here with us and share your guidance through us. It was great talking to you, and we hope to see you in the next interview. Thank you. Thank you, ma'am. And if you want to book an appointment of Dr. Meenu, you can do the same by visiting India Top Doctor. Till then, be safe, and for more such videos, keep watching India Top Doctor.